Hi Sarthak, how are you doing? Hello, ma'am. I'm doing good. Okay, great. Okay, so I was just waiting for a couple of minutes so that everyone can join and then we can start. Okay, Yes, sure, ma'am. all right. All right, guys. So let me just share my screen and let's get started with the today's session. Okay, just give me a moment. Okay, so first of all, yesterday we had started with our hypothesis testing, and today we will be completing that, right? So, what all have we discussed as part of the hypothesis testing uh, topic so far? We have discussed that what we intend to do here is to make some concrete decisions and conclusions with respect to the various hypotheses that we will be developing. Okay, for which we will be defining a hypothesis, a null hypothesis, and an alternative one where equal to has to be part of the null hypothesis, and we will be rejecting one of them and we will be failing to reject the other. Okay, sorry, either we can actually reject or we can fail to reject. That's it. ठीक है ना? So for that, first of all, we will be needing our hypothesis. Then after we have the hypothesis with us, उसके बाद next क्या होता है? Next we have to decide, which statistic we will be using. कौन सा statistic हम use करने वाले हैं? Z है, T है, F है, chi-square है, and accordingly we need to calculate the test statistic value. ठीक है? अच्छा, T versus Z हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. टी कब यूज करते हैं और जी कब यूज करते हैं? टी हम तब यूज करते हैं, कब यूज करते हैं टी? याद है किसी को? देयर इज वन स्पेसिफिक सिचुएशन जहां पर हम Ma'am, we last discussed p-value calculation. बस पी वैल्यू डिस्कशन हमने किया था, बट ये टी वर्सेस जी हमने कल नहीं डिस्कस किया था. और आप ही के साथ आई थिंक मैंने आपके सैम्पलिंग साथ में किया था क्या? हाँ सैम्पलिंग में किया था, राइट. I didn't attend that class, but उतना last 2 hours I had to go. Sample size should be हाँ less हाँ than हाँ 30, no? Less than 30. यस हमने Less उसमें than 30. बेसिकली डिस्कस किया था, राइट. Yeah, so we discussed the sample size should be less than 30. तो उस केस में अगर वेरिएंस नोन है तो हम t यूज करते हैं, अगर वेरिएंस अननोन है तो हम z यूज करते हैं. ठीक है, तो वो एक टेबल था सैंपल एंड एस्टिमेशन में जो हमने कवर किया था, जिसमें वी डिस्कस कि t कब यूज करते हैं, z कब यूज करते हैं. ठीक है, आई विल गिव द टेबल अगेन. ठीक है, एक सेकेंड दो मेरे को. I'll just reiterate that table because that is important. Because अभी जो हमने है कल एक क्वेश्चन कर लिया था, z वैल्यू टेस्ट स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करना और z टेबल्स को रेफर करना. तो नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा? t टेबल्स, f टेबल्स और chi स्क्वायर टेबल्स को अंडरस्टैंड करना एंड उनके रिस्पेक्ट पे क्वेश्चंस करना. ठीक है, सो लेट मी जस्ट reiterate the table that contains the differences between T table and Z table. Just give me a moment. This is the table I'm talking about. Okay. So अगर normal distribution का अपना case है and known variance है, small sample size हो या large sample size हो, we will be using Z statistic only अगर known variance है तो. अगर unknown variance है और स्मॉल सैंपल साइज है तो फिर हम टी स्टैटिस्टिक यूज करते हैं. अगर लार्ज सैंपल साइज है तो भी टी यूज कर सकते हैं अननोन वेरिएंस के केस में. ऑल्दो थ्योरेटिकली जी स्टैटिस्टिक भी एक्सेप्टेबल है इन दिस सिचुएशन. नॉन नॉर्मल के केस में द सैंपल साइज इज स्मॉल तो हमारे पास कुछ भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है. एंड अगर लार्ज सैंपल साइज है
ठीक है, विद नोन वेरिएंस हम जी स्टैटिस्टिक यूज करेंगे, विद अननोन वेरिएंस हम टी स्टैटिस्टिक यूज करेंगे, although theoretically z statistic is also accepted. So there is only one situation where z statistic is not at all accepted and only t statistic works, and that is when the variance is unknown and the sample size is small. तो एक ये important point है which you need to remember. ठीक है, कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन आता है कि भाई वेरिएंस नहीं पता, स्मॉल सैंपल साइज है, तो हम टी स्टैटिस्टिक यूज करेंगे, अदरवाइज हम जी स्टैटिस्टिक यूज कर सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं. ठीक है, Ma'am, can you just 1 minute put this Yeah. table on screen? Copy कर लेते हैं. Done, ma'am. Thank you. Okay. All right. So moving ahead, let's talk about these different situations. Okay. एंड अभी देखो क्या क्या टाइप के आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं. देयर आर अ फ्यू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी देयर. ठीक है, एक हो सकता है कि आपको we just are dealing with, we are just dealing with one population and उस population का एक ही sample है and we are into one mean only. अभी जो आप कर रहे थे वो यही कर रहे थे, we were into one mean. ठीक है ना, मीन जीरो के इक्वल है कि नहीं, दैट वाज द क्वेश्चन दैट वी पिक्ड अप. सो देयर वाज ओनली वन पॉपुलेशन, one sample and one mean on the basis of which we developed a hypothesis and tested it. ठीक है, अभी क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है that we have two population and in those two population we have two samples and उन दोनों sample का हमारे पास दो मीन आ रहे हैं, और दो मीन आ रहे हैं हमारे पास, हम देखना चाह रहे हैं कि भाई वो दो मीन्स इक्वल है कि नहीं, या कुछ भी हम हाइपोथेसिस डेवलप करना चाह रहे हैं विच इज कंसिडरिंग बोथ द मीन्स. दो मीन्स आ रहे हैं इंस्टेड ऑफ वन मीन. तो वन मीन का हमने प्रोसेस देख लिया. व्हाट इफ वी हैव टू मीन, ठीक है, टू मीन्स है, तो उस केस में हम कैसे प्रोसीड करेंगे वो देखते हैं. ठीक है, just give me a second, let me just check. I'm just checking कुछ रह तो नहीं गया इससे पहले के टॉपिक्स में. No, this is enough what we've discussed. And yeah, so now we have to focus upon this situation. The situation is where we have two population, two samples and two means with us, and we want to see something about them, whether they have a relationship with each other or not, something like that. ठीक है, तो सबसे पहले we need to understand कि क्या क्या और specifications है. ठीक है, हमारे पास एक तो चीज है that we have two population and two samples and therefore two means on the basis of which we are trying to find out some conclusion about some hypotheses. ठीक है, और क्या हमारे पास specific है, specific situation है. This is one type of situation that we can have, and that one type of situation is when the variances of the population are unknown but assumed to be equal. ठीक है, when the variances of the population are unknown but assumed to be equal. ठीक है, जो हमारी वेरिएंसेस है वो अननोन है पॉपुलेशन की, बट दे आर assumed to be equal. ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में what we will be using is, we will be, अच्छा एक और हमारे पास कंडीशन है. another assumption we have is that the samples that we have are independent. ठीक है, तो अगर हमारे पास दो पॉपुलेशन है, उनके दो सैंपल्स है एंड सैंपल्स इंडिपेंडेंट है,
एंड जो पॉपुलेशन है उसकी वेरिएंसेस अननोन है बट एज्यूम टू बी इक्वल है, ठीक है। एंड हमारा हाइपोथेसिस भी ऑलमोस्ट सेट ही है। हमारा हाइपोथेसिस क्या है, जिस चीज को हम टेस्ट करना चाह रहे हैं, हम टेस्ट करना चाह रहे हैं कि जो हमारा एक मीन है वो दूसरे मीन के इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी वांट टू टेस्ट. We want Ma'am, to these take means are sample means, right? We want to sample test means. is sample Yes. mean x1 is equal to sample mean x2. Uh, That is okay. hypothesis. That's our hypothesis. Just let me check if it's sample mean or population mean. I think it should be, it makes more sense कि population, क्योंकि हम sample को use करते हैं population के बारे में कुछ conclude करने के लिए. So I think it should be population, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो भी mean था last time भी हमने population mean ही लिया था. Population mean को ले. And one more thing, ma'am, ये अपना we say that variances are unknown of population but are assumed to be equal. Maybe population. मतलब so now we have do we have two hypotheses like variances are equal and mean are equal? These are assumptions. हाँ, मतलब दो situations आएगी. Yes, we will have another situation where we will have a known variance. Here we don't know the variance. ठीक है, this is one situation. We will talk about the other possible situation as well. So let me summarize it. We in last class we talked about one population, one sample and one mean, and we wanted to conclude whether that mean was equal to something or greater than something or less than something etc. वो सब टाइप के एक क्वेश्चन हो गए. उसमें अगर अननोन वेरिएंस है तो हम टी टेस्ट यूज कर लेते हैं, अगर नोन वेरिएंस है तो जी टेस्ट यूज कर लेते हैं, ठीक है. दैट वाज वन चैप्टर, वन सेगमेंट. Abhi, we are talking about another segment in which we are talking about the first situation where we are taking two population, two samples, where we'll have two means and we want to check whether the means are equal or not. And the underlying assumption of the situation is that the samples are independent and the variances of the population are unknown but assumed to be equal. Variances जब unknown होती है तो हमारा टी टेस्ट जो होता है वो एक्सेप्टेड होता है, राइट. वेदर द सैंपल साइज इज लार्ज और स्मॉल, दोनों ही सिचुएशन में टी टेस्ट इज एक्सेप्टेबल, राइट, एज वी हैव जस्ट डिस्कस्ड अननोन वेरिएंस के केस में. तो यहाँ पर हम क्या यूज करने वाले हैं, वी विल बी यूजिंग टी स्टैटिस्टिक, ठीक है. तो एक चीज हमने कंक्लूड करी बेस्ड अपॉन दिस. प्लीज म्यूट योरसेल्फ. ओके, सो एक चीज जो हमने यहाँ पर कंक्लूड करी है दैट इज कि हम टी टेस्ट यूज करने वाले हैं, टी स्टैटिस्टिक यूज करने वाले, ठीक है. सो नाउ वी हैव टू लर्न टू कैलकुलेट द टी स्टैटिस्टिक, ठीक है. तो अभी टी स्टैटिस्टिक कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं. सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द टी स्टैटिस्टिक, the formula is going to be mean 1 minus mean 2 upon under root of जो हमारा, I'll explain the terms, ठीक है, अभी लिख लो पहले, ठीक है. sp square plus sp square, this is divided by n1, this is divided by n2, where sp is equal to n1 minus 1 into s1 square plus n2 minus 1 into s2 square upon n1 plus n2 minus 2, ठीक है. And we have degrees of freedom equivalent to n1 plus n2
-2. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये टी स्टैटिस्टिक का वैल्यू है, दैट इज जो भी हमारे पास सैंपल मीन्स अवेलेबल हो गए उनका डिफरेंस अपॉन हमने क्या किया है, एक जो हमारे पास दो सैंपल्स हैं उनका कंबाइंड हमने एक तरीके से स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला है. फॉर दैट वी हैव दिस फॉर्मूला, दैट इज n1 minus 1 into s1 square, that is variance of the first sample, plus n2 minus 1 into variance of the second sample upon n1 plus n2 minus 2. ये एक बार आ गया तो दिस डिवाइडेड बाय n1 प्लस दिस डिवाइडेड बाय n2 का अंडर रूट लिया, जो भी मीन का डिफरेंस है डिवाइडेड बाय दिस थिंग किया, व्हाट वी गेट इज आर टी स्टैटिस्टिक. एंड जब भी हमारे को टी स्टैटिस्टिक चाहिए एंड टी टेबल्स को रेफर करना पड़ेगा तो वी नीड द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आल्सो, क्योंकि दो सैंपल्स है तो दो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को कंबाइन किया है हमने. ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने अपना स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन सबको हम कंबाइन कर रहे हैं, राइट. तो वैसे ही डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को भी हमने कंबाइन करते हुए n1 plus n2 minus 2 कर दिया है टू गेट अ कंबाइंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हियर. ठीक है, तो पहले तो आप ये नोट डाउन कर लो एंड यस आपको ये रिमेम्बर रखना पड़ेगा. यू विल हैव टू रिमेम्बर दीज फॉर्मूलाज. डिफिकल्ट नहीं है. इफ यू स्टडी देम ट्वाइस और थ्राइस एंड प्रैक्टिस देम वंस और ट्वाइस, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे. सो प्लीज राइट डाउन दीज formulas and then we will proceed with one example where we'll have a similar situation, that is population variances will be unknown but assumed to be equal, and we will be taking into consideration a situation where we will try to conclude whether two means are equal or not. ठीक है. Okay, so I hope आपने लिख लिया होगा अभी तक. Let me just remove it and get a question here. एक क्वेश्चन है इस सिचुएशन पे. लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट. इजी है, डिफिकल्ट नहीं है. जितना डिफिकल्ट लग रहा था सब कुछ उतना डिफिकल्ट नहीं है. Okay, so let's see what all do we have. So basically, Sue Smith is investigating whether the abnormal returns of acquiring, तो पता नहीं क्यों ये पूरा दिखाता नहीं है, acquiring firms during merger announcement periods differ for horizontal and vertical merger. She estimates that the abnormal returns for a sample of acquiring firms associated let me do one thing, just give me a minute. Let me get you the full question here. Okay, so let's see now what we have. So basically, Sue Smith is investigating whether the abnormal returns for acquiring firms during the merger announcements differ from horizontal and vertical merger. तो हमारे पास population क्या हो गई है, एक हो गई है horizontal merger की का data and एक हो गया है हमारे पास vertical merger का data. She estimates the abnormal returns for a sample of acquiring firms associated with horizontal merger and a sample of acquiring firms involved in vertical merger. तो दोनों ही population से हमने samples उठा लिए हैं. Smith finds that the abnormal returns from horizontal mergers have a mean of 1%. ठीक है, 1% का हमारा
हॉरिजॉन्टल मर्जर के सैंपल से जो एबनॉर्मल रिटर्न निकाला है दैट इज 1% एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज 1%. ठीक है. While the abnormal returns from vertical mergers have a mean of 2.5 and standard deviation of 2%, Smith assumes that the samples are independent and the population means are normally distributed and the population variances are equal but unknown. यहाँ पर कहीं पर भी लिखी नहीं थी तो unknown है. यानी all our conditions are being satisfied here. अभी अपने को t statistic calculate करना होता है. यहाँ पर for your is टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू ऑलरेडी आपको दे रखी है. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी ऑलरेडी आपको दे रखा है, ऑल्दो इट्स नॉट डिफिकल्ट टू कैलकुलेट इट. सो यू शुड नो द फॉर्मूलाज एंड यू शुड कैलकुलेट इट. इस केस में इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, दैट्स गुड फॉर यू. ठीक है. एंड इसके अलावा व्हाट वी हैव इज वी हैव अ 5% significance level. Should Smith reject or fail to reject the null hypothesis that the abnormal returns to acquiring firms during the announcement period are the same for horizontal and vertical merger? तो abnormal returns हमारे same हो गए या हो गए different. हमारा जो basically null hypothesis है that is that the abnormal returns are the same. ठीक है. तो अकॉर्डिंगली हम दो तरीके से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. वन वे टू डू दैट वुड बी दैट द मीन आर इक्वल एंड द ऑल्टरनेटिव बिकम्स दैट द मीन आर नॉट इक्वल. एक तो ये वे है. अनदर वे इज टू आइडेंटिफाई इट एज द मीन 1 माइनस मीन 2 इज इक्वल टू 0. ये उनका अगर उनका डिफरेंस 0 होगा मतलब वो सेम है. एंड ऑल्टरनेटिव वुड बी दैट द डिफरेंस इज नॉट इक्वल टू 0. तो आइदर वेज इट इज फाइन. दिस इज व्हाट वी इंटेंड टू प्रूव. स्टैटिस्टिक की वैल्यू टी स्टैटिस्टिक value is already provided to us as minus 5.474 with degrees of freedom of 120 and level of significance of 5%. Now we need to see whether it's a two-tailed test or a one-tailed test. बताइए आप, two-tailed टेस्ट है या one-tailed टेस्ट है? two-tailed टेस्ट है. Absolutely correct. Okay, so we have a two-tailed test here. Two-tailed test है. So, do you have t tables with you? So we go into our t tables. यहाँ पर we have to specify two things. One would be degrees of freedom. So degrees of freedom अपना क्या है? That is 120. Okay, so it is I think closest जो हमारे पास है that is 100 something, right? And corresponding to it we have to define the confidence interval in the the upper tail probability. हमें अपर ट्रेल की प्रोबेबिलिटी बतानी है. अभी टू टेल टेस्ट है तो आई थिंक हम लोग का टी टेबल थोड़ा अलग है. हो सकता है मैंने डाउनलोड किया था तो हो सकता है आपको बस 120 के क्लोज टू जो भी नंबर अवेलेबल है एग्जैक्ट 120 दिया हुआ है. हाँ तो बढ़िया है 120 के अगेंस्ट में आप क्या करोगे यहाँ पर इफ यू व्यू तो आपको अपर टेल प्रोबेबिलिटी चाहिए. योर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज 5%. तो 5% आपका दोनों टेल में डिवाइड हो जाएगा 2.5 2.5. सो अपर टेल की प्रोबेबिलिटी हाँ 0.025. इसके अगेंस्ट जो 120 पे आ रहा होगा क्या आ रहा है? 1.98 वही 1.98. ठीक है. So 1.98 becomes our critical value. Let's go back to our question.
एंड क्रिटिकल वैल्यू हमने निकाली है 1.98। तो अभी क्या करेंगे, इफ यू लुक एट आवर डायग्राम, तो 1 माइनस 1.982 प्लस 1.98 हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल हो गया। एंड हमारा वैल्यू है वो कहाँ आएगी, जो हमारी टेस्ट स्टैटिस्टिक है, दैट इज लाइंग हियर, राइट? तो इज इट इन द रिजेक्शन जोन? Yes. So what can we say? We can say that it is in the rejection zone, and therefore we reject Reject the, X naught. yes, absolutely, we reject the null hypothesis that they are equal. That means what we conclude is that they are not equal. This is what we accept. ठीक है, सिंपल है, प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। सिर्फ आपको ये दिमाग लगाना है कि भाई हमारा नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या रहना चाहिए, कौन सा टेस्ट यूज करना है, फिर उसके लिए कैसे क्रिटिकल वैल्यू निकलेगी, कैसे स्टैटिस्टिक वैल्यू निकलेगी, एंड उन सब चीजों को हमें प्लॉट कर देना है एंड देखना है रिजेक्शन जोन में आ रहे हैं हम, तो वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। अगर फेल टू रिजेक्ट जोन में आ रहे हैं तो वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, एंड द ऑपोजिट जो भी है वो ट्रू या फॉल्स हो जाता है अकॉर्डिंगली। दैट्स इट। मैम, ठीक है। सो ये इस क्वेश्चन में जैसे अभी टी स्टैट जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, मतलब टी कैलकुलेट या टी स्टैटिस्टिक, दिस इज ऑलरेडी गिवन, तो ऊपर का डेटा सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। हाँ, सिर्फ कंफ्यूज करने के दिया इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। ठीक है, दिस वाज अनदर क्वेश्चन, अनदर सिचुएशन। यहाँ पर अपने पास क्या था, टू पॉपुलेशन थे, टू मीन थे, एंड वो दोनों इक्वल है कि नहीं, दैट वाज व्हाट वी वर ट्राइंग टू फाइंड आउट। ठीक है, अभी आगे चलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ सिचुएशन। तो अभी अपने को सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस देखनी है और कुछ नहीं करना। पूरे चैप्टर में वी विल बी लुकिंग इनटू डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस, एंड उन सिचुएशंस में कैसे स्टैटिस्टिक निकालेंगे, कैसे क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे, एंड देन फाइनली फाइंड आउट करेंगे वेदर वी आर इनटू द रिजेक्शन जोन और एक्सेप्टेंस जोन। बस यही हमने देखना है। ठीक है ना? सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अभी next point would be about a situation where we are doing a paired comparison test. Okay. ठीक है, पेयर्ड कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है? यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, अभी तो हम क्या कर रहे थे, दोनों मीन्स को एक सेपरेट मानते हुए वो इक्वल है कि नहीं, दैट इज व्हाट वी वर ट्राइंग टू फाइंड आउट। यहाँ पर हम उनके पेयर के ऊपर कुछ टेस्ट करने वाले। ठीक है, यहाँ पर भी we'll have two population and therefore two samples will be there, but जो भी analysis करेंगे we'll do in a paired format. ठीक है, of course normally distributed है सब कुछ, and we want to find out in terms of a pair. So generally जो हमारा null hypothesis होगा, that would be as per a mean difference। उन दोनों के मीन का जो डिफरेंस है वो इक्वल टू सम हाइपोथेटिकल वैल्यू है कि नहीं। ठीक है, दिस बीइंग द हाइपोथाइज्ड वैल्यू, तो हाइपोथाइज्ड वैल्यू ऑफ द मीन डिफरेंस ऑफ द टू पॉपुलेशन। ठीक है, एंड यूजुअली इट इज अगेन जीरो ओनली, दैट देयर जो भी उनके बीच के मीन का डिफरेंस है वो जीरो के इक्वल है, या इट कैन बी इक्वल टू सम अदर वैल्यू आल्सो। ओके, एंड इसका ऑल्टरनेटिव क्या बन जाएगा,
that the difference in the mean is not equal to some hypothesized value. और इसको हम एक step further ले जा सकते हैं with the variety of the mean difference being greater than equal to the hypothesized value. Alternative will become the mean difference is less than the hypothesized value, or it can be that the mean difference is less than equal to the hypothesized value, or it can be the mean difference is greater than the hypothesized value. So whatever possibilities can be there, Ma'am, I equal didn't to understand this. is simple. It's just what we did with respect to mean yesterday. The same thing, that it is equal to some hypothesized value, it is greater than equal to some hypothesized value, or it's less than some hypothesized value. यही किया था ना हमने कल. तो अभी वही काम हम क्या कर रहे हैं? We are taking that thing only, equal to hypothesized value, greater than equal to hypothesized value, or less than equal to some hypothesized value. वही काम कर रहे हैं, बस हम एक सिंगल मीन के रिस्पेक्ट पे नहीं कर रहे हैं. वी आर डूइंग इट विथ रिस्पेक्ट टू दिस थिंग. एंड व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द टू मीन्स दैट वी हैव. तो हमारे पास दो पॉपुलेशन है, दो सैंपल है, उन दो पॉपुलेशन के दो मीन है. हमने क्या किया है? उन दोनों मीन्स का डिफरेंस निकाला है, जिसको हम this mu d बोल रहे हैं. This mu is the symbol of mean and d represents difference. So जो mu d है, that is representing the difference in the mean of the two population. तो अभी हमारा जो टेस्ट की सिचुएशन है वो कुछ इस तरीके से है that we are trying to find out whether the difference in mean of two population is equal to some hypothesized value, greater than equal to some hypothesized value, or less than equal to some hypothesized value. ठीक है, तो हम वही काम कर रहे हैं जो कल कर रहे थे. बस जो the only difference is कि कल हमने सिर्फ एक सिंगल मीन लिया था और वो मीन किसी x वैल्यू के इक्वल है कि नहीं, वो सब टाइप की चीजें हम कर रहे थे. अभी हम क्या कर रहे हैं? दो पॉपुलेशन के दो मीन का डिफरेंस किसी पर्टिकुलर वैल्यू के इक्वल है कि नहीं, ऐसे टाइप का एनालिसिस कर रहे हैं. तो अभी अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो हमारे पास व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ आवर टेस्ट स्टैटिस्टिक, वो सब चीजें अपने को पता होनी चाहिए. तो दिस इज द सिचुएशन दैट वी हैव. ठीक है, so this is referred to as a paired comparison. And let's see कि अभी इसका टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू कैसे निकलेगी. तो अभी अपने को क्या याद रखना है कि जब भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है जहां पर हम टेस्ट स्टैटिस्टिक जहां पर हम दो मीन्स के डिफरेंस को किसी पर्टिकुलर हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू के इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन टाइप एनालिसिस कर रहे हैं. सो ऐसी सिचुएशन में हम क्या यूज करने वाले हैं? सबसे पहले तो फॉर द पेयर्ड कंपैरिजन टेस्ट हम टी स्टैटिस्टिक निकालेंगे. ठीक है, यूजुअली यहाँ पर भी पॉपुलेशन वेरिएंस अननोन ही रहेगी. ठीक है, तभी हम टी स्टैटिस्टिक निकाल रहे हैं यहाँ पर. और तो कहीं पर लिखा होगा तो मैं कंफर्म कर दूंगी. अभी मेरे को दिखा नहीं है कि वेरिएंसेस नोन है अननोन है, कहीं पर ऐसा लिखा हो. हाँ, बट एक चीज यहाँ पर है जो पिछले केस से डिफरेंट है. आप बोलोगे कि पिछले केस में भी तो हमने मीन दोनों के मीन्स में क्या रिलेशनशिप है, वो इक्वल है कि नहीं, ऐसा ही कुछ तो हम जज कर रहे थे. बट द डिफरेंस दैट वी हैव हियर in comparison to what we had earlier was that here the samples are not independent. ठीक है, जो हमारी assumption है which is different from the previous case is that the sample means are not independent. ठीक है, पिछली बार वो independent थे, यहाँ पर अभी वो independent नहीं है. That means they are dependent in nature, तभी हम उनका
पेयर्ड कंपैरिजन कर रहे हैं, दैट इज उनके डिफरेंस निकाल करके उस डिफरेंस पे एनालिसिस कर रहे हैं rather than taking them as is, because the samples are not independent. ठीक है, ये sample means आप हटा सकते हो, samples are not independent. That is the assumption that we have. Now the point is कि इस केस में हम जब टी टेस्ट यूज करेंगे तो टी टेस्ट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो टी स्टैटिस्टिक वैल्यू will be equal to d dash minus the hypothesized value. This is basically d dash stands for the mean difference of the samples. ठीक है, तो दोनों के सैंपल का हो सकता है आपको डायरेक्टली मीन डिफरेंस ही दिया हो या फिर आपको कंप्यूट करना हो. ठीक है, so whatever difference is there between their sample means minus the hypothesized value with respect to this mean difference that we have in mind as per the situation upon the standard error of mean difference. ठीक है, ये यूजुअली आपको दिया ही होगा. ठीक है, हम यूजुअली क्या कैलकुलेट करते हैं? स्टैंडर्ड एरर ऑफ अ मीन विच इज स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन अंडर रूट n. ठीक है, दैट इज द फॉर्मूला वी यूज फॉर स्टैंडर्ड एरर. अभी वही हम यहाँ पर भी यूज करें, यही एग्जैक्टली ये हमने कल भी देखा था. बट कल और आज में क्या डिफरेंस है? कल हमने क्या देखा था? दैट we took the mean of the sample, subtracted the hypothesized value we had in mind with respect to the mean and divided by the standard error of the mean. अभी वही काम हम कर रहे हैं, just the difference is कि instead of a single mean we are taking the difference in two mean as our base. तो difference in two mean जो उनके samples का mean है, उनका जो difference है, माइनस उनके डिफरेंस का जो हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू हमारे दिमाग में है वो अपॉन द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन डिफरेंस बिटवीन द टू मीन्स. ठीक है, तो अभी ये कैलकुलेट नहीं करना आपको, बट यू शुड नो दिस, ये आपको दिया ही होगा मोस्टली. एंड अभी इस सिचुएशन पे वी विल बी गोइंग अहेड विद द क्वेश्चन. ठीक है, तो सबसे पहले हमने सिंगल मीन की सिचुएशन देखी थी कल, अभी हम टू मीन्स की सिचुएशन देख रहे हैं. टू मीन्स में पहली सिचुएशन देखी थी हमने वेयर द सैंपल वाज इंडिपेंडेंट, एंड अभी ये सिचुएशन देख रहे हैं हम वेयर द सैंपल्स आर नॉट इंडिपेंडेंट. तो जब सैंपल इंडिपेंडेंट थे तो हमारा क्या स्टैटिस्टिक का वैल्यू था एंड कैसे उसको प्रोसीड किया था वो हम देख चुके हैं. अभी हम क्या देख रहे हैं? इफ द सैंपल इज नॉट इंडिपेंडेंट तो हम सबसे पहले उसका स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला देखा विच इज वेरी क्लोज टू द मीन फॉर्मूला दैट वी डिस्कस्ड यस्टरडे. अभी क्या करेंगे? एक क्वेश्चन करते हैं ऑन दिस सिचुएशन एंड लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट. ओके, मैम लास्ट में अपने x बार माइनस h क्या लिखा था? वो मैंने कल का फॉर्मूला लिखा था, दैट इज मीन माइनस द हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू अपॉन स्टैंडर्ड एरर. ये हमने कल टेस्ट स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला देखा था ना, जो कल विद रिस्पेक्ट टू सिंगल मीन, वो था वो z स्टैटिस्टिक का ना. Okay, so let's take care of this situation now. Okay, so what we have as per this question, Joe Andrews is examining changes in estimated betas for the common stock of companies in the telecommunication industry before and after deregulation. तो दो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी हमारी?
One would be before deregulation, the other would be after deregulation. Now, Andrew believes that the betas may decline because of deregulation, since the companies are no longer subject to the uncertainties of rate of regulation, or that they may increase because there is more uncertainty regarding the competition in the industry. Andrews calculate the T statistic of 10.26. तो यहाँ पर भी आपको statistic की value दी हुई है for the hypothesis test based upon a sample size of 39. Sample size आपका 39 है. Test statistic is 10.26. Using a 5% significance level, determine whether the betas have changed or not. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखना चाह रहे हैं? We want to look at whether the betas have changed or not after the deregulation. एक possibility है कि बीटा चेंज कर गया होगा, may have increased or decreased, ठीक है, due to these reasons as mentioned. एक possibility है कि हमारा जो बीटा है वो नहीं चेंज करा होगा. बीटा इज अ मेजर ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क, ठीक है ना. तो अभी ये देखने के लिए हमें क्या करना? सबसे पहले वी विल हैव टू आइडेंटिफाई आवर hypothesis, and the hypothesis is basically whether the difference in the mean of the two population will be equal to 0 or not. ठीक है, तो हमारा basically जो null hypothesis है वो क्या हो जाएगा? That would be equal to our this mu d, which is basically the difference between the two means, that is equal to 0, and the other side of it is that they are not equal to 0. हम ये तो देखना चाह रहे हैं कि हमारा जो बीटा है या हमारा जो मीन है बिफोर एंड आफ्टर डीरेगुलेशन वो चेंज करा है या नहीं करा है. दैट इज व्हाट वी वांट टू कैप्चर. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली ये हमारे सबसे पहले तो क्या बन जाते हैं? हमारे नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बन जाते हैं. उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाता है? टू लुक इनटू द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स. सिंस द वेरिएंस ऑफ द पॉपुलेशन इज अननोन, तो हम टी स्टैटिस्टिक यूज करेंगे. वैसे तो क्वेश्चन में लिखा ही हुआ है कि टी स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन है, बट स्टिल वी नो वेरिएंस अननोन के केस में हम टी स्टैटिस्टिक यूज करते हैं. तो टी स्टैटिस्टिक यहाँ पर ऑलरेडी कैलकुलेटेड है 10.26. हमें क्या करना होगा? हमें निकालनी होगी इसकी क्रिटिकल वैल्यूज. ठीक है, तो अभी इसकी क्रिटिकल वैल्यूज कैसे निकालनी है? उसके लिए अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए कि सबसे पहले तो ये टू टेल टेस्ट है या वन टेल टेस्ट है. आप बताओ, वन टेल टेस्ट है या टू टेल टेस्ट? इट्स अ, बताओ बताओ. टोटल ही होगा ना? हाँ, टू टेल्ड है. सो इट्स अ टू टेल टेस्ट. तो हमारी दो क्रिटिकल वैल्यूज आएगी. ठीक है, एंड जो ये 5% हमारा सिग्निफिकेंस लेवल है, that will be divided among the two tails as 2.5 2.5. ठीक है, per tail. तो हमारा ये डिवाइड हो जाता है. so the probability in the upper tail is 2.5%. अभी अपने को क्या चाहिए? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम चाहिए. so what would be our degree of freedom? डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर हम सिंपली, क्योंकि सैंपल साइज हमारे डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है, तो सेम ही सैंपल साइज है दोनों का, दो अलग अलग नहीं है, एक ही है. So our degrees of freedom simply becomes 39 minus 1, which is 38. तो अभी अपन क्या करेंगे? We'll go to the T tables, plot 2.5% in the upper tail probability, and 38 in the degrees of freedom, and get our critical value. क्या आप निकाल सकते हैं critical value? 0.024. Okay, let me check. So let's go to our tables.
here what are we looking at? "38 के अपनी degrees of freedom है. So where is 38? 38 is somewhere here, right? And against that हमारे को चाहिए 2.5% probability of the upper tail, that is 0.025. तो अगर हम देखें तो what do we have? 2.021. यही आया था आपका क्वेश्चन है 2.021 आ रहा है सबका. नहीं मैम 2.024 बिकॉज यहाँ पे एग्जैक्ट 38 का डीएफ दिया हुआ है. ठीक है, एग्जैक्ट दिया हुआ है तो वो बेटर होगा. सो लेट्स टेक योर्स. ठीक है, तो आपका जो आ रहा है लेट्स राइट इट डाउन. तो आपका क्रिटिकल वैल्यू कितना आ रहा है? 2.024. यस. ओके, सो क्रिटिकल वैल्यू बन गया है अपना 2.024. तो प्लस 2.024 माइनस 2.024, ये क्रिटिकल वैल्यूज हमने प्लॉट कर दी है. एंड हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू क्या है? 10.26, जो कि आएगा यहाँ पर. तो इज इट इन द रिजेक्शन जोन और द फेल टू रिजेक्ट जोन? Rejection. H note is rejected. Yes, it is in the rejection zone again. So we reject the null hypothesis that the mean difference is equal to 0. So what do we conclude? We conclude that the betas have changed after deregulation. ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? सो एक सिंगल मीन का केस देखा, फिर हमने दो मीन्स लिए. दो मीन्स इक्वल है कि नहीं है व्हेन द सैंपल्स आर इंडिपेंडेंट, वो एक सिचुएशन देखी. अभी हमने एक और सिचुएशन देखी वेयर वी आर अगेन कंसिडरिंग टू मीन्स and here we are looking at the mean difference. Okay, but the thing is that the samples are not independent, they are in fact dependent on each other. तो क्योंकि हमारे samples dependent है तो accordingly हमने क्या किया? हमने देखा कि उनके mean difference equal to 0 है कि नहीं with respect to this case. ठीक है, so that was about this thing. ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं? अभी देखो मीन के बारे में हमने बहुत सारी बातें कर ली. सिंगल मीन, डबल मीन, we have talked about it. We have talked about Z table and T tables both. ठीक है, तो T table का पॉइंट भी कवर हो चुका है, Z टेबल का पॉइंट भी कवर हो चुका है, वन मीन मल्टीपल मीन का पॉइंट भी कवर हो चुका है. अब नेक्स्ट पॉइंट दैट वी नीड टू फोकस अपॉन इज रिस्क साइड. जैसे मैंने आपको कल बताया था कि दो चीजों पे हम फोकस करेंगे, वन वुड बी द रिटर्न साइड एंड द अदर वुड बी द रिस्क साइड. तो रिटर्न साइड का हमने काम कंप्लीट कर दिया है. नाउ वी विल बी फोकसिंग अपॉन द रिस्क साइड कि अगर हमारे पास कुछ वेरिएंस है तो सिंगल वेरिएंस का क्वेश्चन भी करेंगे एंड टू वेरिएंसेस का क्वेश्चन भी करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन अ सिंगल वेरिएंस क्वेश्चन और सिचुएशन. तो अगर सिचुएशन में हमारे पास एक ही पॉपुलेशन है, वन पॉपुलेशन इज देयर एंड वन वेरिएंस इज देयर, तो हम उसके साथ क्या कर सकते हैं? उसके साथ सिंपली हमारा जो हाइपोथेसिस हो सकता है कि भाई वो वेरिएंस इक्वल टू नॉट इक्वल टू समथिंग है कि नहीं है, राइट? दैट इज व्हाट वी कैन मैप हियर. तो अभी उसको करने के लिए हम क्या करेंगे? इन ऑर्डर टू डू दैट लेट्स सी क्या क्या हाइपोथेसिस के हमारे पास पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं. वन hypothesis possibility can be that the null hypothesis is that the variance is equal to some hypothesized value of the variance.
उसका ऑल्टरनेटिव क्या बन जाएगा, दैट द वेरिएंस इज नॉट इक्वल टू सम हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू ऑफ द वेरिएंस. ठीक है, दैट इज वन possibility. The second can be that the null hypothesis is that the variance is greater than equal to some hypothetical value and it is less than some hypothetical value. Third possibility is that the null hypothesis is that the variance is less than equal to some hypothetical value and the alternative will become that the variance Ma'am, is greater than a hypothetical value. this is when we say we have two populations. No, one population का तो सिर्फ if that is equal to zero, not equal to zero. नहीं, वन पॉपुलेशन में हम इक्वल टू सम अदर वैल्यू भी कर सकते हैं. दैट हाइपोथेटिकल वैल्यू कैन बी एनीथिंग. इन केस ऑफ वन मीन, वन वेरिएंस, वी कैन do it with respect to any hypothetical value, zero or something else also. One population and two population का concept is the same. नहीं, अभी हम सिर्फ वन पे फोकस कर रहे हैं. जो दिस इज similar to what we did yesterday, not what we did today so far. Yeah, बार yesterday we are से- seeing when we had like one mean, right? हाँ, तो अभी वन स्टैंडर्ड डिविएशन है हमारे पास, वन वेरिएंस है. वो वन वेरिएंस किसी पर्टिकुलर हाइपोथेटिकल वैल्यू के इक्वल है कि नहीं है, उसके ग्रेटर है कि नहीं, उसके लेस है कि नहीं. दैट इज व्हाट द हाइपोथेसिस इज. ठीक है, अभी अगर हमारे पास, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या हमारे पास सिचुएशंस हो सकती है. ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट सिचुएशन है वेयर वी आर टारगेटिंग द वेरिएंस of a normally distributed population. Of course the populations are all normally distributed only, क्योंकि अगर normal distribution का केस नहीं होता तो नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास जनरली कुछ खास टेस्ट अवेलेबल नहीं है. ठीक है, तो सब कुछ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमारा पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. वी हैव वन वेरिएंस, वो वेरिएंस इक्वल टू और नॉट इक्वल टू सम वैल्यू है कि नहीं वो हम बता रहे हैं. अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका एक टू टेल्ड टेस्ट हो जाएगा. इन द फर्स्ट सिनेरियो इट वुड बी टू टेल्ड एंड इन दिस it would be one tail as discussed yesterday. This is same as yesterday. Just the difference is कि कल हम मीन के बारे में बात कर रहे थे, आज हम वेरिएंस के बारे में बात. अगर वेरिएंस का क्वेश्चन होता है तो हम ना जी टेबल यूज करते हैं ना टी टेबल. So that is another important point, that we use the Z table or the T test, that is the Z test or the T test only when we are talking about the mean. ठीक है, अगर हम वेरिएंस की बात कर रहे हैं तो हमारे पास दो टेस्ट हैं. अगर सिंगल वेरिएंस का क्वेश्चन है तो द टेस्ट इज काई स्क्वायर. ठीक है, एंड अगर हमारे पास मल्टीपल वेरिएंसेस का टेस्ट है, दो वेरिएंसेस का टेस्ट है, तो हमारे पास एफ टेस्ट यूज करते हैं. तो एफ यूज करेंगे आगे आने वाले केसेस में जहां पर हमारे पास दो वेरिएंसेस आ जाएंगे. यहाँ पर व्हेन वी हैव अ सिंगल वेरिएंस तो हम किस टेबल को रेफर करने वाले हैं, काई स्क्वायर टेबल को रेफर करने वाले हैं. ठीक है, अभी हाउ डज अ काई स्क्वायर टेबल वर्क, वी नीड टू अंडरस्टैंड. बट बिफोर वी अंडरस्टैंड द काई स्क्वायर टेबल, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि काई स्क्वायर का जो टेस्ट का वैल्यू है, टेस्ट स्टैटिस्टिक, हम जी स्टैटिस्टिक वैल्यू निकालते हैं, टी स्टैटिस्टिक वैल्यू निकालते हैं, वैसे ही यहाँ पर हम काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक की वैल्यू निकालेंगे एंड दैट विल बी इक्वल टू, उसको ऐसे डिनोट किया जाता है काई स्क्वायर n माइनस वन. दिस विल बी इक्वल टू, सिंपल है, ज्यादा मुश्किल फॉर्मूला नहीं है, n माइनस वन इंटू जो भी हमारा सैंपल है उसका वेरिएंस अपॉन जो भी हमारा हाइपोथेटिकल वेरिएंस है वो. ठीक है,
सो ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया टू कैलकुलेट द chi-square statistic. That is, we take n minus 1, we multiply it with the variance of the sample upon the hypothetical value of the variance that we have in mind कि हमारा variance इसके equal है या उसके equal है. तो जो भी hypothetical value है वो यहाँ ले लेते हैं. एक सेकेंड. एंड इसके अलावा we have another thing that we need. ठीक है, जैसे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम टी टेबल में यूज होता था, वैसे काई स्क्वायर टेबल में भी वी नीड अ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, जिसको हम n-1 से ही कैलकुलेट करेंगे. सो फॉर रेफरेंस टू द काई स्क्वायर टेबल हमारे को एक तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम चाहिए होगा, और उसके अलावा ऑफ कोर्स वी नीड आवर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जैसे कि अपने को हर जगह पे चाहिए होती है. तो अपने पास अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होगा एंड वील हैव द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो इन दोनों के बेसिस पे हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड आउट द क्रिटिकल वैल्यूज फ्रॉम द काई स्क्वायर टेबल. ठीक है, तो काई स्क्वायर टेबल अभी ओपन भी करेंगे, देखेंगे वो कैसे वर्क करता है. तो काई स्क्वायर टेबल से अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए क्रिटिकल वैल्यू, जिसके लिए ये दोनों इनपुट्स अपने को चाहिए होंगे. फिर क्रिटिकल वैल्यूज आ जाएगी हमारे पास, काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास. तो फिर हम उनको ग्राफिकली प्लॉट करके देख लेंगे कि जो हमारा काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक की वैल्यू है वो रिजेक्शन जोन में आ रही है या एक्सेप्टेंस जोन में आ रही है. अकॉर्डिंगली उसको टेस्ट करके हम कंक्लूड कर सकते हैं. ठीक है, अब बोलो. मैम दिस सैंपल स्क्वायर जो आपने लिया है इन द काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक फॉर्मूला, is it a combined sample or individual? There is only one sample. There are There no only two one. samples. There are One no two. sample here. Yeah. One population, one sample, one variance. That's it. ठीक है, तो आप ये सब नोट डाउन कर लो. एंड मीनवाइल आई विल गेट एन एग्जांपल फॉर यू. वो एग्जांपल के थ्रू हम सारी चीजें, सारा प्रोसेस कैसे वर्क करता है वो भी देख लेंगे. एंड वी लुक इनटू द काई स्क्वायर टेबल एज वेल. लेट मी open the chi-square table also. So first of all, सबसे पहले तो I would like to get an example here. तो देखते हैं पहले तो एग्जाम्पल में क्या डिटेल्स है, एंड अकॉर्डिंगली वी लुक इनटू आवर काई स्क्वायर टेबल ऑल्सो, उसको कैसे रीड एंड एनालाइज किया जाता है, तो वो भी चीज हम ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पर अभी. ठीक है, सो लुकिंग एट द क्वेश्चन, सबसे पहले तो what we have is historically high return equity fund has advertised that its monthly returns have a standard deviation equal to 4%. This was based on estimates from 2005 to 2013 period. High return wants to verify whether this claim still adequately describes the standard deviation of the fund's returns. High return collected monthly return for the 24-month period between 2013 and 15, measured a standard deviation of the monthly return to be 3.8%. High return calculates the test statistic to be 20.76. यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है. I can't hear you. What about others? You can't hear me? It's fine, ma'am. Ma'am, I can hear you. Okay. So everyone can hear me, Shanay. Okay. So coming back, high return calculates the test statistic of 20.76. We will be calculating it ourselves only. ठीक है? Using a 5% significance level, determine if the more recent standard deviation is different from the advertised standard deviation. So what we have advertised is 4%. We want to check whether this 4% that we have advertised is correct or not. ठीक है, सैंपल साइज हमने क्या लिया है, 24 मंथ्स का लिया है.
एंड जो सैंपल की स्टैंडर्ड डिविएशन निकल करके आई है दैट इज 3.8%. ठीक है, एंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या हो जाता है 24 माइनस दैट इज 23 हो जाएगा, राइट. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारे पास है 5% का. ठीक है, वी नीड टू डिटरमिन कि ये 4% जो हमारा पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन है वो 4% के इक्वल है कि नहीं है, वेदर इट इज इक्वल और डिफरेंट. ठीक है, सो अकॉर्डिंगली आवर हाइपोथेसिस विल बिकम that the वेरिएंस के पर्सपेक्टिव से हम अपना हाइपोथेसिस आइडेंटिफाई करते हैं. तो वेरिएंस इज इक्वल टू 4%. 4% का स्क्वायर करेंगे बिकॉज 4% इज स्टैंडर्ड डिविएशन. तो 4% का आप स्क्वायर करते हो कितना आता है इन डेसिमल्स? स्क्वायर ऑफ 4% इन डेसिमल्स वुड बी, बताओ, मैं आपसे सुनना चाहती हूँ. 1 सेकंड की कैलकुलेशन थी वैसे. हाँ जी, 4% का स्क्वायर क्या होता है? If you are not able to calculate square, then we have a serious problem here. फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग तो भूल जाओ फिर अभी के लिए. पहले तो स्क्वायर वेयर निकालना सीखेंगे. 4% का स्क्वायर. I will not move forward without your answer. 0.16%. 0.16%. एंड इसको अगर हम डेसिमल में ले लेंगे तो इट विल बी 0.0016. Yeah. ठीक है, so our hypothesis would be that our variance is equal to 0.0016. तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या बन जाएगा? that our variance is not equal to 0.0016. Hello. ठीक है, या so this is about our hypothesis. Shane, we can't hear you if you are saying something. I think there is some network problem at your end because we can't hear you when you are speaking and you can't hear me when I am speaking. तो कुछ आप अपना नेटवर्क चेक कर सकते हो if you can hear me. Okay, so I hope this is clear, our hypothesis. Then the next thing is clear that हमें chi-square table use करना पड़ेगा, chi-square test use करना पड़ेगा because this is upon a single variance. This question is based upon a single variance. तो chi-square statistic अपने को सबसे पहले तो calculate करना पड़ेगा, right? When we calculate our chi-square statistic, तो उस केस में फॉर्मूला क्या था? What was the formula? हम फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे. फॉर्मूला was n-1 into the sample variance upon the hypothetical variance that we have in mind. ठीक है, इसको यूज करके पहले chi square statistic की वैल्यू निकाल करके बताओ मेरे को. All the information is in front of you. You just have to do the match. Calculate करना, ठीक है. I will be right back in just a minute. Meanwhile, please calculate the chi-square statistic value. Okay. So did you calculate the chi-square value? How much are you getting? 0.875. Okay. So अभी यहाँ पर अपने को क्या करना होगा? n-1. So n is 24. So 24 minus 1, that is 23 into जो वेरिएंस है हमारी सैंपल की, सैंपल वेरिएंस है 3.8% का स्क्वायर अपॉन जो हाइपोथेटिकल वैल्यू है हमारी दैट इज 4% का स्क्वायर. ठीक है, सो इट विल बी 23 into 0.038 का स्क्वायर करेंगे, राइट?
0.038 का आप स्क्वायर करते हो, इट कम्स आउट टू 0.0014. इसको डिवाइड करेंगे 4% के स्क्वायर से, विच वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, दैट इज 0.0016. तो अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो इनटू 23 divided by 0.0016, it comes out to be 20.7575. ऐसे आ रहा है नंबर, which actually टैली 7575 था, इसके बाद 7 है, राउंड ऑफ करके इसको 20.76 बोल सकते हैं, जो कि हमारे को क्वेश्चन में भी दिया हुआ है. ठीक है, वैसे तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, बट आई स्टिल वांटेड यू टू कैलकुलेट. ठीक है, नेवरदलेस 20.76 कैसे आया, सबको समझ आया? Everyone, are we on the same page? At least yes or no? So once we have this with us, ठीक है, तो next thing that we need here is our critical values. ठीक है, वो कहाँ से आएगी? वो आएगी chi-square table से. तो we need to look into the chi-square table कि उसको हम कैसे read करते हैं. For that, let's go to a chi-square table. So this is a chi-square table. This also you can either download from Google or you can get it in the appendix section of your book. ठीक है, so now let's first look at कि इसको कैसे read करते हैं. जब हमने T टेबल देखा था, तो T में क्या था कि हमारी एक टेल में बेसिकली क्या आ रहा था, probability आ रही थी, right? We were getting the probability in a tail. So यहाँ पर अपने को क्या specify करना था? If we talk about it, just a minute. So basically जब टी टेबल्स में काम करना था, तो यहाँ पर क्या था, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम था, और ऊपर क्या था आपका, ऊपर हमारी वो वैल्यू थी, कौन सी वैल्यू थी हमारी, प्रोबेबिलिटी इन द अपर टेल. लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये हट क्यों नहीं रहा यार, यहाँ से आपको दिख रहा है ऊपर क्या लिखा है? How we remove this part? You Okay. drag it down. ड्रैग नहीं हो रहा था ना. ओके, सो ऊपर क्या लिखा है, एरिया टू द राइट ऑफ द क्रिटिकल वैल्यू. तो अगर टू टेल टेस्ट है, we'll have two critical values and we have to define the area to the right of the critical values this time, instead of just the probability of the upper tail. We have to define the area to the right of the critical value. Okay, so that will of course be determined with the help of the level of significance. Now this is a two-tailed test, since we are trying to find out whether the variance is equal to 4% or not. So it's a two-tailed test again, and therefore as per the 95% confidence interval, 5% is our level of significance, which get divided in the two tail as 2.5% each. ठीक है, तो अब हम critical values निकालनी है. तो हमारे को दो critical values है, तो अभी हमारे इस केस में बेसिकली दो different critical values आएंगे. ठीक है, chi-square के केस में y, बिकॉज chi-square का जो टेबल होता है ना, फॉर द chi-square टेबल इट इज कैप्ड एट 0. ठीक है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट फॉर द chi-square टेबल वैल्यू 0 से नीचे नहीं जाती. ठीक है, सो अगर हम अपना chi-square टेबल प्लॉट करते हैं, सो I don't know why it's not working. Okay. So I'll show it to you on the whiteboard. Basically, what we are saying is that in this case, हमारी जो
मतलब वहां पर हमारे पास 2 टेल थी, प्लस माइनस हो सकता था क्रिटिकल वैल्यू, तो इन दैट केस हमने 1.96 का प्लस और 1.96 का माइनस ले लिया, लेट्स से फॉर एग्जांपल। इन दिस केस इन chi स्क्वायर वी कैन नॉट डू दैट वे। हमारे पास 2 क्रिटिकल वैल्यूज है, तो दोनों के अकॉर्डिंगली हमारी 2 अलग अलग वैल्यूज कैलकुलेट होगी, क्योंकि प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बिकॉज दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज कैप्ड एट 0। तो दोनों ही क्रिटिकल वैल्यूज हमारी पॉजिटिव आएगी। अब क्या होगी वो हमारी क्रिटिकल वैल्यूज, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर हम एक प्रोसेस की बात करें, 2 प्रोसेसेस है, 2 स्टेप्स है, बिकॉज वी हैव 2 क्रिटिकल वैल्यूज। तो जो अपर क्रिटिकल वैल्यू होगी, वी विल प्लॉट इट ऑन द व्हाइट बोर्ड। तो जो अपर क्रिटिकल वैल्यू है उसमें कितना आ रहा है, 2.5% आ रहा है, दैट इज 0.025। ठीक है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना है एज पर द क्वेश्चन, दैट इज 23। तो हम क्या करेंगे, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 23 देखेंगे, एंड अपर क्रिटिकल वैल्यू का कितना एरिया रहेगा, 2.5% रहेगा। तो जहां पर भी वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, विच इज दिस पॉइंट 38.076, तो 38.076 हमारा क्या बन जाता है, 1 क्रिटिकल वैल्यू बन जाता है। ठीक है, लेट्स प्लॉट इट ऑन आवर ग्राफ। तो बेसिकली हम chi स्क्वायर के रिस्पेक्ट पे क्या बोल रहे हैं कि इसकी जो वैल्यू रहेगी वो 0 से कम नहीं हो सकती, ये दोनों साइड पे नहीं जाता, माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी पे ये ट्रैवल नहीं करता, इट इज कैप्ड एट 0। तो यहाँ पर हमारी बेसिकली 2 वैल्यूज, 2 क्रिटिकल वैल्यूज है, तो एक यहाँ आ जाएगी, एक यहाँ आ जाएगी। ठीक है। अभी जो इस साइड का हमारा एरिया है, दैट इज बेसिकली द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिवाइडेड इनटू 2, विच क्योंकि 2 टेल टेस्ट है, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वाज 2.5%, तो उसको हमने 2.5% और 2.5% में जैसे हम डिवाइड करते थे वैसे ही किया है। जस्ट द डिफरेंस इज कि वहां पर एक जो होता था वो माइनस की साइड पे चला जाता था, एक पॉजिटिव की साइड पे रहता था। यहाँ पर वो नहीं होने वाला, यहाँ पर दोनों ही पॉजिटिव की साइड पे रहेंगे, तो दोनों ही हमारी जो वैल्यूज आएगी वो पॉजिटिव आएगी। अभी हमने क्या किया था, 2.5% के हिसाब से डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 23 प्लॉट करते हुए हमने अपना क्रिटिकल वैल्यू निकाला, विच इज 38.076। अभी अपने को क्या चाहिए, दूसरा क्रिटिकल वैल्यू चाहिए, एंड एज पर द टेबल विच इज गिवन टू अस, उसमें हमारे को अपने क्रिटिकल वैल्यू के राइट साइड के एरिया को स्पेसिफाई करना होता है। तो ये हमारी क्रिटिकल वैल्यू थी, इसके राइट साइड का एरिया कितना था, 2.5% था। अभी दूसरी हमारी क्रिटिकल वैल्यू ये है, इसके राइट साइड का एरिया कितना हो जाएगा, ये एरिया प्लस ये एरिया, राइट। दिस एरिया इज व्हाट, आवर कॉन्फिडेंस इंटरवल, जो कि कितना दिया हुआ है, 95% है। सो 95% plus 2.5%, which is 97.5%. So 97.5% is the area to the right of this critical value. ठीक है, given this information and our degrees of freedom of 23, we can find out the critical value at this point. ठीक है, तो उसके लिए फिर से चलते हैं हम अपने chi square टेबल पे। When we go into our chi square table, again at 23 देखेंगे, and right side पे अपना कितना है, 97.5 है, which is this, right, 0.975। तो 23 के अगेंस्ट 0.975 पे क्या है हमारे पास, 11.689। ठीक है, 23 degrees of freedom, 0.975 is the area to the right of the critical value, giving us a combination of the two things gives us the critical value is 11.689. ठीक है, we'll go back and we'll plot this thing into our graph. So कितना आया था, 11.689. So 11.689 हमारा एक लोअर क्रिटिकल वैल्यू बन गया एंड हायर क्रिटिकल वैल्यू बन गया 38.076. एंड अभी process will be the same.
तो प्रोसेस कहाँ पर डिफर किया था? प्रोसेस बस डिफर किया था इस पॉइंट पे जब हमारा जो टेस्ट स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला था वो डिफरेंट था। वो फॉर्मूला यूज करके हमने अपना टेस्ट स्टैटिस्टिक निकाला विच इज 20.76 एंड हमने अपना काई स्क्वायर टेबल यूज करते हुए 2 क्रिटिकल वैल्यूज निकाल ली। अभी इसको प्लॉट करके देखते हैं ये कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, दिस विल बी द रिजेक्शन जोन, दिस विल बी द रिजेक्शन जोन, this will be the acceptance zone. So 20.76 कहाँ पे आ रहा है? बीच में आ जाएगा इन दोनों के 11.69 एंड 38.076 के बीच में कहीं पे 20.76 आ गया। तो क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम? Do we reject the null hypothesis here or we fail to reject it? बताओ जी, do we reject the null hypothesis here or we fail to reject it? I'm failed to reject it. Why do we fail to reject it? Yes, क्योंकि वो उसके कॉन्फिडेंस इंटरवल के बीच में है, राइट? 95%. Yes. So this was the acceptance zone. ठीक है, ये हमारा acceptance zone था where we fail to reject it. So we are into this zone only. So we can conclude that we fail to reject the null hypothesis. That is, we can say that the null hypothesis is true. That means जो भी हमारा variance है जो हमने claim किया है 4% का in our advertisement वो सही है। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन? Any doubts in it? If there are any doubts, please ask. And इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे हम जिसमें हम अपना लास्ट सिनेरियो कंसिडर करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले कल हमने 1 मीन का केस देखा था, फिर आज हमने 2 मीन का केस देखा। सबसे पहले 2 मीन में एक केस देखा वेयर वी हैड इंडिपेंडेंट सैंपल, दूसरा केस देखा वेयर वी हैड डिपेंडेंट सैंपल। उसके बाद हमने अभी वेरिएंस का केस देखा है वेयर वन वेरिएंस का केस देखा है वेयर वी यूज काई स्क्वायर टेबल। ठीक है, अभी हम आ रहे हैं अपनी लास्ट सिचुएशन में वेयर वी हैव 2 वेरिएंसेस। ठीक है, so can I remove this part? I hope you have written everything down. अभी हम क्या करेंगे? We have 2 normally distributed population as always. ठीक है, अभी हमारे पास 2 पॉपुलेशन है और 2 सैंपल्स है एंड दोनों सैंपल्स इंडिपेंडेंट है। ठीक है, 2 पॉपुलेशन 2 सैंपल्स दोनों इंडिपेंडेंट है। हमें क्या देखना है? हमें देखना है दैट जो वो 2 पॉपुलेशंस है उनके जो वेरिएंसेस है वो इक्वल है कि नहीं। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है वेयर वी हैव टू normally distributed population with 2 samples which are independent and their respective variances we have to check whether they are equal or not. अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन हम एफ टेस्ट यूज करेंगे। एफ टेस्ट भी सिमिलर टू काई स्क्वायर रहेगा, दैट इज जो भी उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैप्ड एट 0 टाइप्स रहने वाला है। ठीक है, तो इसमें भी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। वैल्यू नेगेटिव हो सकती है जी टेबल में और टी टेबल में, नॉट इन काई स्क्वायर एंड एफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अब जब 2 पॉपुलेशन है 2 वेरिएंसेस है वो दोनों इक्वल है कि नहीं, वी आर ट्राइंग टू फाइंड इट आउट। ठीक है, तो अपना टेस्ट क्या बन सकता है? दैट द वेरिएंस 1
इज इक्वल टू वेरिएंस 2, ऑल्टरनेटिव क्या बन जाएगा, वेरिएंस 1 इज नॉट इक्वल टू वेरिएंस 2। ठीक है, इसके अलावा थोड़े अगर कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करना चाहते हैं तो अदर पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, that the variance of 1 is greater than equal to variance of 2, alternative क्या बन जाएगा, variance of 1 is less than variance of 2। इसके अलावा third possibility can be that the variance of 1 is less than equal to variance of 2 and the alternative will become as variance of 1 is greater than variance of 2। ठीक है, तो ये कुछ 3 पॉसिबिलिटीज आ सकती है विद रिस्पेक्ट टू कंपेयरिंग टू वेरिएंसेस ऑफ पॉपुलेशंस विद इंडिपेंडेंट सैंपल्स। तो इन सभी केसेस में हम क्या यूज करने वाले हैं, हम एफ टेस्ट यूज करने वाले हैं। एंड एफ टेस्ट के लिए सबसे पहले वी नीड टू नो कि हम एफ स्टैटिस्टिक की वैल्यू निकालेंगे, जैसे हम हर एक की निकालते हैं, टी स्टैटिस्टिक की निकाली, जी स्टैटिस्टिक की निकाली, अभी लास्ट सिचुएशन में काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक की निकाली, तो अभी एफ स्टैटिस्टिक की वैल्यू निकालनी है विच विल बी इक्वल टू जो हमारा सैंपल वेरिएंस है 1 अपॉन सैंपल वेरिएंस 2। वी जस्ट नीड टू मेक श्योर कि ये जो वेरिएंस है दिस इज वेरिएंस ऑफ द सैंपल with larger value। ठीक है, as in if I have to write it down कि अगर हमारे को दो वेरिएंसेस जो दी हुई है, जो ज्यादा बड़ी वेरिएंस होगी दोनों में, उसको हम फर्स्ट पॉपुलेशन में काउंट करेंगे, फर्स्ट वेरिएंस में काउंट करेंगे और उसको हम न्यूमरेटर में लेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब सिंपली ये है that the numerator has to be greater than the denominator for f statistic। ठीक है, अभी हमें ये तो हो गई इसकी सिंपल सी हाइपोथेसिस की डेफिनेशन एंड स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्या आता है भाई, एफ टेबल को कैसे देखना है। तो एफ टेबल के लिए सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए हो गया हमारे को, एक तो अपने को डिग्रीज ऑफ फ्रीडम चाहिए होगा, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वुड बी n1 माइनस 1, जो भी हमने पॉपुलेशन 1 कंसिडर करी है बेस्ड अपॉन हायर वेरिएंस, उसका n माइनस 1 ले लेंगे और n2 माइनस 1 हो गया दूसरे सैंपल का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो बहुत सिंपल है एफ टेबल को यूज करना। हमें सिर्फ और सिर्फ एक तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए एंड दूसरा अपने को डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पता होना चाहिए विच इज जस्ट n माइनस 1 एंड n2 माइनस 1। तो यहाँ पर हमारे पास 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रहने वाले हैं क्योंकि 2 पॉपुलेशन है, 2 सैंपल है, और हमारे पास एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रहने वाला है। इन दोनों चीजों को कंबाइन सॉरी इन दोनों चीजों को कंबाइन करते हुए हम अपना एफ टेबल देखेंगे। कैसे देखना है, एग्जाम्पल लेते हैं। मैम, एग्जाम्पल में I have a हाँ जी, doubt. ये S1 square is greater than S2 square. That's an assumption or a rule? that's a rule that we have to follow कि हमारे पास 2 पॉपुलेशन रहेगी, उन दोनों का वेरिएंस रहेगा। we will consider population 1 as the population जिसका जो सैंपल वेरिएंस है वो हायर होगा देन दी अदर। सैंपल के वेरिएंस तो दिए होंगे ना हमारे को दोनों, तो लेट्स से एक का 16% है, एक का 20% है, तो जिसका 20% होगा उसको हम पॉपुलेशन 1 बोलेंगे, जिसका 16% होगा उसको हम पॉपुलेशन 2 बोलेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में आपका हाइपोथेसिस भी डिफाइन हो जाएगा, एफ स्टैटिस्टिक की वैल्यू भी आ जाएगी, एफ टेबल को भी देख लेंगे तो सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगेन जो सिग्निफिकेंट पॉइंट है वो यही है कि हमारा जो वैल्यू है वो 0 पे कैप्ड रहेगा, क्रिटिकल वैल्यूज 0 पे कैप्ड रहेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं हो सकते जैसे कि जी टेस्ट एंड टी टेस्ट में होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं अभी।
ठीक है, क्वेश्चन रीड करेंगे सब लोग. Question says, Anikawa is examining the earnings of two different industries. Kawa suspects that the earnings of the textile industry are more divergent. Divergent हम कैसे देखते हैं कि divergent है कि नहीं? Variance के through. So what we are saying is that the earnings of the textile industry are more divergent than those of the paper industry. यानी कि हमारा suspect है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो वेरिएंस है वो ज्यादा है in comparison to paper industry variance. This is our suspect that the earnings of the textile industry are more divergent, that the variance is higher than those of the paper industry. To confirm this suspicion, Kaur has looked at a sample of 31 textile manufacturers and sample of 41 paper companies. She measured the sample standard deviation of earnings across the textile standard deviation of earnings to be 4.3 and that of the paper industry to be 3.8. Kaur calculates a test statistic of 1.2805 using a 5% significance level determined if the earnings of the textile industry have a greater standard deviation than that of the paper industry. ठीक है, तो अभी if you look at the basically just a minute. So standard deviations हमारी दो दी हुई है, दो सैंपल्स है. टेक्सटाइल का स्टैंडर्ड डिविएशन है 4.3, पेपर का 3.8 है. हायर वन इज टेक्सटाइल. तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हम अपना पॉपुलेशन 1 बोल देते हैं एंड पेपर वाला हमारा पॉपुलेशन 2 हो जाएगा. अकॉर्डिंगली एफ वैल्यू विल बी इक्विवेलेंट टू 4.3 बाय 3.8. इसको आप कैलकुलेट करते हो कितना आता है? 4.3 by 3.8. अच्छा, सो सॉरी, बट ये स्टैंडर्ड डिविएशन है. अपने को इसका स्क्वायर को डिवाइड करना पड़ेगा ना, बिकॉज द फॉर्मूला इज वेरिएंस 1 अपॉन वेरिएंस 2. नेवरदलेस इसको आप करके देखना, इट शुड कम आउट टू बी 1.2805. टू सेव सम टाइम ऑफ द क्लास हम इसको ले लेते हैं जो दिया हुआ है एंड इसको आप एज होमवर्क करना, कल डिस्कस करेंगे कि ये आता है कि नहीं आता. सो वेरिएंस ऑफ 1 पॉपुलेशन अपॉन वेरिएंस ऑफ 2 पॉपुलेशन लेंगे. सो 1.2805 आएगा. ये क्या है? हमारा एफ टेस्ट है. हाइपोथेसिस की बात करें तो हाइपोथेसिस हमारा क्या होगा? आप सजेस्ट करो क्या हाइपोथेसिस होना चाहिए बेस्ड अपॉन द केस स्पेसिफिकेशन. बेसिकली मतलब वो डिफरेंट है. यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? टेक्सटाइल इंडस्ट्री का वेरिएंस बड़ा है या नहीं है. दैट इज आवर सस्पेक्ट, राइट? सो नल हाइपोथेसिस कैन बी दैट द वेरिएंस 1 is less than equal to variance 2 and alternative will become that the variance 1 is greater than variance 2, right? So this is our suspect. आप first line read करोगे. Kaur suspects that the earnings of the textile industry are more divergent than those of the paper industry. तो हमारा more divergent मतलब एक का variance दूसरे से बड़ा है. इक्वल टू साइन अपने को नल में डालना होता है, तो उस हिसाब से लेस देन इक्वल टू वाला नल में आ गया एंड ग्रेटर देन वाला ऑल्टरनेटिव में आ गया. दिस इज आवर हाइपोथेसिस. दिस इज आवर टेस्ट स्टैटिस्टिक वैल्यू. नाउ व्हाट वी नीड इज द क्रिटिकल वैल्यू. अभी आप देखो तो ये है वन टेल टेस्ट, तो अपने को एक ही क्रिटिकल वैल्यू यहाँ पर चाहिए होगी. ठीक है,
0 पे कैप्ड होता है, एक क्रिटिकल वैल्यू आएगी हमारे को, वो निकालनी है। उसके लिए अपने को क्या क्या चाहिए, एक तो 5% कॉन्फिडेंस इंटरवल इज देयर, सॉरी 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज देयर, राइट। सो हमारा अभी देखो एफ टेबल में आपको दिखाती हूँ, एफ टेबल कैसे देखेंगे एंड हाउ विल वी कैलकुलेट आवर क्रिटिकल वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू एफ टेबल्स। अब देखो एफ टेबल ना सबके लिए अलग अलग ही है, 5% के लिए अलग है, 2.5% के लिए अलग है। आप अगर अपने नेक्स्ट में चेक करोगे तो वहां पर आपको दो मिल जाएंगे, एक 2.5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के हिसाब से, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के हिसाब से। तो अभी अपने को 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के हिसाब से देखना है, ठीक है। लेट मी जस्ट डाउनलोड इट। बहुत ही सिंपल है एफ टेबल। अलग अलग लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए सबसे पहले तो अलग अलग टेबल्स है आपके पास। तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए आपको सिर्फ दो चीजें प्लॉट करनी है, दैट इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ द फर्स्ट पॉपुलेशन एंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ द सेकेंड पॉपुलेशन। अभी ये इतना क्लियर वर्जन मिला नहीं है मेरे को, लेट मी लुक इनटू इट, ठीक है। क्लियरली लिखा होता है, आप एक बार चेक करना, आपके अपेंडिक्स में होगा, उसमें चेक करना कि दिस इज द फर्स्ट पॉपुलेशन और दिस इज द फर्स्ट पॉपुलेशन। Ma'am, on the row on the top, it is DF1. So I'm assuming Okay. that will be fourth population का. Okay. And on the column, like column wise, में जो है, it is DF2. Okay, if we go by that, then what is our DF1 as per our question? Our first is our textile, right? तो टेक्सटाइल का 31 है एंड पेपर का तो 31 माइनस 1 30 हो जाएगा एंड पेपर का 40 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर 30 एंड यहाँ पर 40 को प्लॉट करेंगे तो 1.69 आ रहा है आई थिंक। वेल 1.94 आना चाहिए। इतना क्लियर नहीं है ये, लेट मी ऑपोजिट अगर करके देखे कि क्या वैल्यूज है, एक तो वो भी नहीं दिख रही ना। अच्छा, दिस इज आई थिंक 39 एंड 49 इंस्टेड ऑफ 0, या पता नहीं, एक बार मैं क्लियरर वर्जन लेके आती हूँ कल, फिर ये चीज को कंक्लूड कर देंगे, ठीक है। मेनली क्या करना है आपको, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का लेकर के आना है, उसी में आपके जो दो पॉपुलेशन है उनका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम प्लॉट करोगे, जहां पर भी वो कोइंसाइड कर रहे होगे, दैट इज आवर आंसर। इन दिस केस इट शुड बी 1.94, आई विल वेरीफाई इट टुमारो, ठीक है। एंड बाकी अगर हम यहाँ पर 1.94 एज्यूम कर ले तो नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट प्रोसेस वुड बी कि हम हमारा जो भी वैल्यू आया है उसको प्लॉट करेंगे। इसको प्लॉट करते हैं तो वो यहाँ आ जाएगा, 1.94 से छोटा है 1.2805। दिस वाज आवर रिजेक्शन जोन एंड दिस इज अ जोन टू फेल टू रिजेक्ट। तो अपना जो है वो फेल टू रिजेक्ट में आ गया, therefore we fail to reject this thing, इसको हम रिजेक्ट नहीं कर पाए, यानी we accept it as true, and therefore what we conclude is that the variance of textile is greater than the variance of the paper industry। तो प्रोसेस वही रहेगा, हाइपोथेसिस आइडेंटिफाई करना, क्रिटिकल वैल्यू निकालना, स्टैटिस्टिक वैल्यू निकालना, स्टैटिस्टिक वैल्यू को प्लॉट करके देखना whether it is lying in the rejection zone and or fail to reject zone,
एंड फिर उसके बेसिस पे फाइनल कंक्लूजन कर देना. तो एज सेड yesterday also, processes are going to be the same, just the difference is that is going to be is about the calculation of the statistic value and then the critical value. That's it. बस यही दो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस रहने वाले हैं कि हमने स्टैटिस्टिक वैल्यू कैसे निकालनी है, क्रिटिकल वैल्यू कैसे निकालनी है. बाकी प्रोसेस इज गोइंग टू बी द सेम. ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट्स हमारे सारे कवर हो चुके हैं. एक छोटा सा पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू, एक थ्योरेटिकल पॉइंट है, वो मैं कल ले लूंगी. ठीक है, इट्स जस्ट गोइंग टू टेक मी 2 मिनट्स और 4 मिनट्स, तो कल ले लेंगे वो. एंड बाकी अभी इसके हम क्वेश्चंस साथ साथ हमने सब केसेस के क्वेश्चंस हमने लिए हैं, बट प्रैक्टिस करनी है अभी. ठीक है, सो आई एम ट्रस्टिंग यू फॉर द प्रैक्टिस ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है, तो उसके लिए अभी मैं क्या चाहती हूँ दैट आप इस चैप्टर को रिवाइज कर लो पहले तो. ठीक है, गो थ्रू द एंटायर करिकुलम एंड इट्स क्वेश्चंस, एंड फिर डाउट सेशंस में मैं आपके साथ इनके डाउट्स डिस्कस करना चाहूंगी एंड प्रैक्टिस भी करना चाहूंगी. ठीक है, अभी मेरे को क्लास में अगर टाइम नहीं मिला इस चैप्टर को, तो जो भी चैप्टर से रिलेटेड अपने को क्लास में टाइम नहीं मिल पाता, तो वी विल टेक अप दोस चैप्टर्स फॉर प्रैक्टिस एंड डाउट्स इन आवर डाउट सेशन. बट we'll make sure कि for every chapter we are doing enough practice and doubt solving. ठीक है, तो अभी आप इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करो, डाइजेस्ट करो, प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद हम इनके डाउट्स ले सकते हैं डाउट सेशंस में. ठीक है, जो कि अभी सैटरडे संडे को थोड़ा डिफरेंट टाइम में होना है, आपको कम्युनिकेशन हो ही गया था. ठीक है, अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं. लेट्स मीट टुमारो. 5 मिनट का काम है, इसके रिस्पेक्ट में मैं आपको एफ टेबल भी दिखा दूंगी और वो थ्योरेटिकल पॉइंट भी डिस्कस कर लूंगी. एंड उसके अलावा वी विल बी वर्किंग ऑन आर अनदर चैप्टर ऑफ आवर्स. ठीक है, कोशिश करते हैं कल वो चैप्टर हो जाए, क्योंकि वो थोड़ा इजी चैप्टर है, तो एक चैप्टर हम कल कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, चलो ठीक है गाइस, थैंक यू देन एंड गुड नाइट. See you tomorrow, same time. Bye bye. Good night. Thank you. Thank you and try to be on time tomorrow. ठीक है? ठीक है. Okay. चलो. Okay. Bye bye.